We are in a country ruled by law, True that. not by the personal fancies of any officer. आप घर पे रात को रुक नहीं सकते, ये कोई होटल नहीं है कि आप सर्च करने गए और रात को वहीं पे रुक लिए और सब फैसिलिटी आपने एंजॉय कर ली. That the moment I am deprived of my movement, free movement, I am in custody of the officer. So the time starts ticking, 24 hours starts ticking from then. Hello everyone, welcome to Jurisar. Today we have with us Dr. Sujoy Katawala sir, who has been practicing in Bombay High Court and is having 33 years of experience in litigation, especially in indirect taxation, including customs and GST. And आज हमारे पास एक बहुत हॉट टॉपिक डिस्कस करने को है और एक बहुत प्रैक्टिकल रियलिटी को टच करने वाला टॉपिक है जो है जीएसटी और कस्टम्स ऑफिसर्स के अरेस्ट से रिलेटेड पावर्स को लेके. मेन क्वेश्चन हमारा ये है कि आर जीएसटी ऑफिसर्स और कस्टम ऑफिसर्स पुलिस ऑफिसर्स? So, sir, if you may please enlighten us with your experiences, practical experiences and knowledge. देखिए, what happens is that we always have been arguing that the powers that the custom officers and GST officers, the way they exercise them, they should be treated as police officers. They should file FIR, they should maintain case diary, and erstwhile CRPC में जो section 154 onwards provisions थे, they should be treated as police officers. तो हमेशा उसका opposition हुआ है कि no, we are not police officers. So the justification is because we are governed by Customs Act, which is a self-contained code. We are governed by GST Act, which is a self-contained code. ये इश्यू सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है. मेरे ख्याल से द पावर्स दैट दे एक्सरसाइज, जो अरेस्ट का पावर्स है, और अदर लॉज आर ऑल एप्लीकेबल. आप ये नहीं कह सकते कि कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट एप्लीकेबल टू मी, प्रोसीजरल लॉज आर नॉट एप्लीकेबल टू मी. तो एज फार एज कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न, प्रोडक्शन विद इन 24 hours बिफोर द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट, all those are applicable. So why you should not be treated as a police officer, or why there should not be accountability by maintaining of a case diary? Let the court see आप क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, आपने क्या रिकवरी कर लिया, आप किसी की लिबर्टी ले लेते हो उससे. बिकॉज यू आर जनरली, इफ यू टॉक अबाउट जीएसटी मेनली इज डॉक्यूमेंट बेस्ड. तो जो भी आपके एलिगेशंस हो, इनपुट स्टेज क्रेडिट, व्हाटएवर इट इज, दे आर मेनली डॉक्यूमेंट बेस्ड. कस्टम्स में भी आप देखेंगे, इफ इट इज अ इंपोर्ट एक्सपोर्ट रिलेटेड केस, इट इज मेनली डॉक्यूमेंट बेस्ड. सो इफ यू रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ अ पर्सन फॉर इन्वेस्टिगेशन, do you really need to arrest him? And if you're arresting him and exercising all the powers of a police officer, then the same law should apply. True. Sir, recently we have encountered a CBIC guideline wherein it is stated that the grounds of arrest must clearly be stated. But Correct. what is the practical reality in this respect, and is this really followed? Is this practice really followed? देखिए, क्या हुआ था कि सुप्रीम कोर्ट के दो जजमेंट्स आए, प्रबीर पूर्वकायस्था और पंकज बंसल. सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 20, 21, 22 के हिसाब से डिलीवर किए जजमेंट्स. One of the main focus over there was that these judgments across the board apply to all laws. All laws. आप पीएमएलए देख लीजिए, या आप कोई भी दूसरा लॉ देख लीजिए, सीबीआई को देख लीजिए, जीएसटी को देख लीजिए, कस्टम्स को देख लीजिए. जहां पे आप किसकी पर्सनल लिबर्टी छीन लेते हो, इफ यू आर अरेस्टिंग अ पर्सन, then it has to be done as per the procedure established by law.
Right. and he has to be informed of the grounds of arrest. Hmm. देखिए, रीजंस फॉर अरेस्ट तो आपके रीजंस है, रीजंस ऑफ अरेस्ट एंड ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट दोनों अलग स्फीयर में ऑपरेट करते हैं. Reasons is you may require him for investigation, you may require to recover certain things that perhaps are only in his knowledge. But grounds of arrest will enable him to defend himself in court. Hmm. So, grounds of arrest, the concept of grounds of arrest is clearly mentioned in Article 22 of the Constitution. तो क्या हो रहा था कि इतने जजमेंट्स हमारे बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी दिए फॉलोइंग प्रबीर पूर्वा कायस्था एंड पंकज बंसल, एंड दे वर क्वॉशिंग दोस अरेस्ट ऑर्डर्स और लोगों को रिलीज कर रहे थे बेल पर. तो ये जो बात जब बात डिस्कस हुई होगी हाईएस्ट ऑफ द ऑफिसर्स में, तो उन्होंने इंस्ट्रक्शंस निकाली और इंस्ट्रक्शंस में प्रबीर पूर्वा कायस्था का जजमेंट रिप्रोड्यूस किया है वो पर्टिकुलर पैराग्राफ, and they have distributed widely to all the officials in customs, GST all over India कि प्लीज फॉलो द सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस. लेकिन ग्राउंड रियलिटी में आप देख लीजिए, ग्राउंड रियलिटी में जब अरेस्ट कोई होता है, मैं आपको एक दो एग्जांपल्स दूंगा. ग्राउंड रियलिटी में जब भी कोई अरेस्ट होता है तो कहते हैं हमने तो आपको ग्राउंड्स दे दिए, हम तो आपको रीजंस दे रहे हैं, बट दे आर नॉट पैलेटेबल. वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए कुछ लिख दिया उन्होंने. So that doesn't satisfy the test of Article 22 of the Constitution and the Supreme Court judgments. Right. Yes, sir. So, sir, recently we all know कि you were the advocate in Michelle Shah case, जहाँ पे मतलब you have handled from the lower court till the highest court, and then perhaps the department has also apologized before the Honorable Bombay High Court. So, sir, if you may please Yes. highlight that case for us. ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच ने शोकॉज नोटिस इशू किया स्टेट जीएसटी ऑफिसर्स को कि आपने किस बेसिस पर इस भाई साहब को अरेस्ट किया है. हाउ हैव यू अरेस्टेड हिम? You are giving summons of 10 days afterwards, and before the due date, you are arresting him before that. You opened your office at 7:30 in the morning. क्या ऐसा आसमान टूट के गिर गया था कि अरेस्ट मेमो आपने 8 बजे सुबह साइन कर दिया? He had attended your office before. That was not a case कि he has run away or not come to your office. Then why do you need to make this hasty arrest? So that entire exercise was carried out. Petition was filed in High Court. In the meanwhile, because he was produced before the magistrate court, additional CMM 19th court Esplanade Bombay, मैं जाके वहां पे आर्ग्यूमेंट किया और ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट ने फर्स्ट डे पर उसको प्रोड्यूस किया और फर्स्ट डे पर उसको रिलीज कर दिया. एंड आई विल रीड हिज ऑब्जर्वेशंस ऑफ द ऑनरेबल मैजिस्ट्रेट. I will read it for your viewers. Therefore, it appears that the arrest of the accused is in hasty manner, though issued second summons for recording his statement on 30th December. उसके 10 दिन पहले ही आपने अरेस्ट किया उसको, कर दिया उसको. Under the facts and circumstances of the case, in my view, the arrest is hasty and illegal and in illegal manner, and so the arrest is illegal. और उसको बेल दे दी. मीनवाइल हाईकोर्ट के सामने ऑफिसर्स को जब शोकॉज नोटिस इशू की थी हाईकोर्ट ने, तो उनका एपोलॉजी रिकॉर्ड हुआ है और वो भी मैं रीड करता हूं आपके व्यूअर्स के लिए. बोथ द ऑफिसर्स हु आर प्रेजेंट इन कोर्ट टुडे हैव अपोलोजाइज्ड इन द मैनर इन विच द अरेस्ट वाज कंडक्टेड. आफ्टर गोइंग थ्रू दीज एफिडेविट्स वी एक्सेप्ट द एपोलॉजी that has been tendered by the two officers and discharge the show cause notice issued to them. तो यहां पे तो एक ऐसा केस था जहां पे कोर्ट्स ने देखा कि कितना इलीगल एक्ट हुआ है, कितना मिसयूज ऑफ पावर हुआ है, बट ग्राउंड लेवल पर
कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया उनके अगेंस्ट आज तक? यही प्रॉब्लम है. सो दिस इज द डिफिकल्टी. सर, डू यू थिंक कोई ऐसा तरीका हो जिससे ऑफिसर्स को लेसन मिले, या ऑफिसर कोई ऐसी विजिलेंस या मॉनिटरी या मतलब मॉनिटर करने वाली कोई कमिटी बने जो कि इनके ऑफिसर्स के जो एक्शंस है वो नोट कर पाए या उस पे विजिलेंस रख पाए? सर, डू यू थिंक ऐसा कुछ मैकेनिज्म होना चाहिए, या कोई पीनल प्रोविजंस होने चाहिए इनके खिलाफ? देखिए, एक तो हमारे पास जजेस की कमी है. सिस्टम इज ओवरबर्डन. कोर्ट केसेस को टाइम लगता है. सो ऑन वन हैंड दैट इज a problem that we are all dealing with. On the other hand, there is no accountability. अब accountability कैसे होगी? जब कोई लोअर ऑफिसर कोई गलत काम करता है तो उसका सीनियर ऑफिसर उसको पुल अप करे. यहां पे तो पूरा सिस्टम, यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर्स. सो देर इज नो अकाउंटेबिलिटी फैक्टर. देर इज नो फियर. ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस आ रहे हैं कि कमिश्नर कोई ऑर्डर पास करेगा, लोअर ऑफिसर उसको इंप्लीमेंट नहीं करता. ट्रिब्यूनल ऑर्डर पास करती है तो कमिश्नर इंप्लीमेंट नहीं करता. सो अनलेस देर इज ए रिस्पेक्ट फॉर द हायर कोर्ट्स, मैजेस्टी ऑफ द हायर कोर्ट्स एंड द ट्रिब्यूनल्स, और ये जो लोअर ऑफिसर्स, जब तक ये अकाउंटेबिलिटी और डिसिप्लिनरी एक्शन स्विफ्ट नहीं होगा, जब कुर्सी का प्रॉब्लम आ जाता है तो फिर डर लगता है. जब तक वो फियर फैक्टर उत्पन्न नहीं होगा तब तक ये प्रॉब्लम चलते रहेंगे. द प्रॉब्लम इज दैट द ग्राउंड रियलिटी इज कंप्लीटली डिफरेंट, एंड व्हाट वी रीड इन द कोर्ट ऑर्डर्स एक्सेट्रा, द रियल स्पिरिट हैज टू बी इंप्लीमेंटेड एट द ग्राउंड लेवल. उनके जहन में रिस्पेक्ट होना चाहिए. उनको ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ भी करूं लोग भूल जाएंगे, पब्लिक मेमोरी शॉर्ट, और मैं करता रहूंगा. तो वहां पे पनिशमेंट जो होती है डिसिप्लिनरी एक्शन की, वो स्विफ्टली इंपोज होनी चाहिए, तब कुछ बदल आएगा. मैं एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं. हमारे हाईकोर्ट ने कहा है कि जो मिडनाइट और लेट इवनिंग रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, दैट इज ऑल्सो नॉट परमिटेड. ये कभी कभी मिडनाइट पे रखते हैं, कभी कभी 24 घंटे के आगे निकल जाते हैं. सो नाउ द लॉ इज that the moment I am deprived of my movement, free movement, I am in custody of the officer. So the time starts ticking, 24 hours starts ticking from then. I have to be produced before the nearest magistrate. आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं नहीं मैंने तो आपको अरेस्ट नहीं किया था, but you deprived me of my movement. The moment you deprive me of my movement and I am in complete control of you, I am under arrest. So 24 hours starts from then. मिडनाइट पे जो आप रिकॉर्ड करते हो स्टेटमेंट, 11 बजे 12 बजे. एक फॉरेनर आई थी एयरपोर्ट पे, उसको सुबह 7 बजे समन्स इशू किया. कई लोगों को सुबह रात को 11:45 इन द नाइट समन्स देते हैं. गुजरात हाईकोर्ट ने कहा है कि आप एसएससी के घर पे, जिनके वहां आप सर्च कर रहे हो, आप घर पे रात को रुक नहीं सकते. ये कोई होटल नहीं है कि आप सर्च करने गए और रात को वहीं पे रुक लिए और सब फैसिलिटी आपने एंजॉय कर ली. गुजरात हाईकोर्ट परेश चौहान के केस में रिपोर्टेड जजमेंट है, हैज डायरेक्टेड इन्वेस्टिगेशन अगेंस्ट द ऑफिसर्स. तो ये डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन होना बहुत जरूरी है. यस सर. सर, एक क्वेश्चन था मेरे मन में कि जैसे ये ऑफिसर्स अगर कोई भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं या कोई भी रेड कंडक्ट करते हैं या एसएससी को इवन अरेस्ट भी करते हैं, तो इनको इनके सीनियर की परमिशन लेनी पड़ती होंगी और उन्हीं के ऑथराइजेशन. तो सर, उन्हीं के सुपरविजन में ये सारा काम होता है. तो जब वो पर्टिकुलर ऑफिसर फॉल्ट में है तो कहीं ना कहीं वो चेन ऑफ ऑफिसर्स जो है वो फॉल्ट में है, उनके सीनियर जो ऑथराइज करते हैं उनको वो फॉल्ट में है.
तो ये जो पूरा मैकेनिज्म है, या कोर्ट में जो अपोलॉजीज जाती हैं, वो सिर्फ उन ऑफिसर्स की जाती है जो who were conducting that act, बट उनके जो साथ में वो जो चेन ऑफ अथॉरिटीज है, उनका नाम कहीं पे भी नहीं है। और जनरली एक प्रॉब्लम और है कि ट्रांसफर्स हो जाते हैं, कि उस टाइम तो कोई और थे और आज हम लोग हैं। तो सर वो कहीं ना कहीं एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और ये कैसे, मतलब इसका क्या सोल्यूशन है और कैसे हम लोग इसको रोक सकते हैं? इसीलिए दो तरीके हैं। आप सीनियर मोस्ट बॉडी जो है, एपेक्स बॉडी इन दिल्ली, उनको आप कंप्लेन कर सकते हो, लेकिन वो अप्लाई अप्लाई नो रिप्लाई जैसा इशू है। द ओनली बेस्टियन ऑफ होप इन दिस कंट्री इज अवर जुडिशरी। और जब तक जुडिशरी ऐसे केसेस को एग्जामिन करके अप्रोप्रिएट ऑब्जर्वेशंस नहीं पास करेंगी, तब तक ये प्रॉब्लम चलता रहेगा। बिकॉज द एंटायर चेन ऑफ कमांड इज रिस्पॉन्सिबल। देखिए, कमिश्नर ऑथोराइजेशन देता है, वो ऑथोराइजेशन में भी ही हैज टू बी स्पेसिफिक कि किस बेसिस पर और कौन सा एग्जैक्ट प्रोविजन ये एसएससी ने वायोलेट किया है। इसीलिए आप ऑथोराइजेशन दे रहे हो अरेस्ट का। राइट। यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक इन योर माइंड। आप और करके नहीं लिख सकते हो कि इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है। मतलब यू योरसेल्फ आर नॉट श्योर कि इसने क्या वायोलेट किया है। मतलब यू हैव नॉट अप्लाइड योर माइंड, सर यू आर कंफ्यूज। स्पेसिफिक सर और आपके टेम्पलेट, कंफ्यूजन के वजह से, सॉरी, हाँ हाँ जी बोलिए। सर टेम्पलेट्स, इनके टेम्पलेट्स जो है वो सेट होते हैं ऑर्डर के। अभी रिसेंटली यस, आई हैव एनकाउंटर्ड एन ऑर्डर जहाँ पे असेसमेंट ऑर्डर इस बेसिस पे क्वैश कर दिया कोर्ट ने, क्योंकि वो एक टेम्पलेट बेसिस पे था और उस ऑफिसर ने कंटिन्यूस वो टेम्पलेट, सेम टेम्पलेट यूज करते थे वो। तो उस बेसिस करेक्ट। पे उन्होंने ऑर्डर जो है वो कैंसिल कर दिया। तो ये भी शायद टेम्पलेट का इशू हो। 132 आपने जो कहा, उसमें ऐड करता हूं मैं। सेक्शन 132 में सब सिचुएशंस दिए हैं जीएसटी एक्ट में। दिस प्रोविजन और दिस और दिस और दिस, कोई भी एक सिचुएशन में आप अरेस्ट कर सकते हो। अब मैंने तो ऐसे ऑथोराइजेशंस दिए कि सब सिचुएशन 132 के उसमें आपने डाल दिए। मतलब अभी आप डिसाइड करो कि आपको किस में बैठना है अंदर। ये मेरा काम नहीं है, एसएससी का काम नहीं है, या उसका वकील का। जो अरेस्ट करता है उसका काम है स्पेसिफिकली मेंशन करना। सो देयरफॉर दैट अकाउंटेबिलिटी फैक्टर हैज टू बी देयर, otherwise the whole arrest is illegal, राइट, यस सर। because article 22 is above all. grounds of detention have to be given in writing. उसका मतलब क्या हुआ? आप किस ग्राउंड पे मुझे अरेस्ट कर रहे हो वो आपको राइटिंग में बताना है, टू शो दैट यू हैव अप्लाइड योर माइंड एंड यू हैड रीजन टू बिलीव। Just because you have power to arrest, that doesn't mean you can arrest. Otherwise, there will be chaos in our democracy. सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और हमको बहुत अच्छा लगा कि आपने अपने इतने ऑनेस्टी के साथ अपने सारे व्यूज, क्योंकि दिस इज द टाइम वेयर हर कोई ऑफिसर्स और इनके खिलाफ बोलने से हिचकता है, रुकते हैं। और इस बोल्डनेस के साथ हमारे साथ जुड़ने के थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। It was a pleasure. It was a And pleasure. it was our privilege to have you on board, sir. Thank you so much.